Namaste and good evening, everyone. Honorable Shri Prime Minister Narendra Modi ji, let me first start by expressing my heartfelt thanks to you for agreeing to launch my book Digital Nation this afternoon with your hands and also hosting all of us here at Lok Kalyan Marg. I'm very deeply grateful to you, sir. Pradhan Mantri ji, you often talk about how we should be prepared for the future. And you often urge citizens to not only simply cope with the current situation and leave it to destiny, but transform ourselves to prepare the future and do something new. The ideas in this book are very much following these visionary, inspirational words that you often say, and that runs all through the book. Sri Ratan Tata, friends, and distinguished guests. In the next few minutes, let me talk about what is in this book, and before that, let me also talk about why I chose to write this book. It's often common for business people to write books on management, lessons learned, and if I may say so, sometimes give a lot of gyan. And the reason I wrote this book is because I've had a unique career where I was fortunate to be picked up by TCS and the Tata Group when I was 23 years old. And all through the next 3 decades, it has been in the world of technology, and I've seen the impact technology can make both on business and society. I've seen many transformations in this period. Coupled with that, the first 20 years of my life, I lived in rural area. So I've seen how most of our people in the rural area, be farmers or rural entrepreneurs or everyday ordinary citizens, the amount of hardships they go through in order to achieve what they want. If I may say so, most often they have to do extraordinary things for ordinary outcomes. And when I thought about this, I felt that most of India's problems can be put into 2 categories. We call them in the book as twin challenges. The first one is lack of access. Whether it is access to healthcare, education, judiciary, infrastructure, you name it, we have difficulty in that access, especially for those people who live not in the cities, but in the remote parts of the world, of India. On the other side, we lack productive jobs. Many people work in informal jobs, and they don't make enough money in order to be able to get the kind of access they need to get. So on one hand, we have the demand, on the other hand, we have the supply. For some reason, we don't seem to tie the 2 together. So I felt that if we apply technology deliberately in a way, we call it building a bridge between technology or a digital bridge between these twin challenges, then we will be able to solve both. We will be able to make the access possible, and then we will be able to create productive jobs. That's how this term Digital came about. Then I felt that we should do some pilots. So 5 years ago, we started some pilots, and I must say under the Honorable Prime Minister's leadership, we got a lot of support because we had to work with the government, and I must particularly thank Shri Nadda ji. When he was the health minister, he worked with us and helped us to do a number of pilots. We got a lot of support from Shri Amitabh Kant in Niti Aayog. And then we were able to do this pilot for 35 lakh people in 3 locations. And we were able to find in every situation that we were able to solve the access problem, give AI tools to the lowest level of workers and enhance their productivity,
and create a number of new jobs, digital jobs. Then Rupa joined me in the Tata Group. Then with her help, we started to elaborate this across multiple industries, healthcare, education, agriculture, and few other industries. And we find that only in the 3 industries, if you do this correctly, we can impact 3 crore jobs. Many of the jobs are newly created, and some of the other jobs are changed with the help of AI and machine learning, that we will be able to dramatically increase the productivity and also get better wages. Our estimate is about 15% better wages. So that is the core theme of the book, and we talk about real-time examples and real stories to be able to elucidate what we are prescribing. See, often people are very worried about technology and AI. World over, this talk about AI is going to take away jobs. But it is never technology or people. It is always technology for people. Technology is for enabling people. Technology is for empowering people. So if we deliberately use technology, especially this AI and machine learning and IoT and cloud, we will be able to empower humans in a unique way. And that can create all the impact that we are hoping to do in terms of giving that access, and as our Prime Minister says, quality of life, ease of life, not only ease of doing business. And that will become a reality. And that is the theme. 2 other themes we talk about in the book is women employment and the importance of micro-rural entrepreneurship. And I will not elaborate. So the job now is, how do we create these digital skills and how do we apply it? That is what we want to do. And in order to do that, we have a unique opportunity, because again, under the vision of our Honorable Prime Minister, we at the Tata Group are setting up an Indian Institute of Skills between Tata Trust and the government, which we launched a few days ago in Mumbai. And we are going to bring these concepts of digital skills so that we can really put this into action. It is my sincere belief that the future of work will be designed, tested, and made in India, and the world will copy. And I hope all of you have a chance to read the book and will find it useful and will have a comment or 2. Please feel free to pass it on, and we want to perfect it as we go forward. अभी आप सबको धन्यवाद देके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप अपने हाथों से इस पुस्तक का विमोचन करें और पुस्तक की प्रथम प्रति श्री रतन टाटा को भेंट करें। इसके पूर्व मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे हमें संबोधित करें। देश की सोशल और बिजनेस लीडरशिप को हमेशा प्रेरित करने वाले, ऊर्जा देने वाले,
श्रीमान रतन टाटा जी और उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान चंद्रशेखर जी, बहन रूपा जी, देवी और सज्जनों, रतन टाटा जी, चंद्रशेखर जी से मिलना, उनके साथ चर्चा करना, बहुत कुछ नए नए सुझाव सुनना, ये कई सालों से मुझे लाभ मिलता रहा है। इन पर देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक को लीडरशिप देने की जिम्मेवारी भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद स्माइल और स्ट्रेस फ्री ये कैसे रहते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में है इस पर भी कोई किताब चंद्रशेखर जी लिखेंगे। और हाँ, इस आइडिया का कोई मेरा तो पैटर्न नहीं है, इसलिए आप जरूर लिख सकते हैं। आप बिना किसी स्ट्रेस से ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथियों, वो किताब लिखेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्माइल और स्ट्रेस फ्री माइंड से क्या होता है उसका परिणाम डिजिटल नेशन के रूप में हमारे सामने है। पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट देश की समस्याओं के समाधान के लिए जो सोच निकलती है उसी का ये परिणाम है। यही पॉजिटिविटी, यही ऑप्टिमिज्म अपने टैलेंट और रिसोर्सेज पर जो विश्वास है और वो ही नए भारत की मजबूत नींव को नई आशा, नई ऊर्जा देता है। और मुझे विश्वास है कि एस्पिरेशनल इंडिया को तो इंस्पायर करेगी ही, समाज के कुछ प्रोफेशनल पेसिमिस्टिस्ट जो रहते हैं, हो सकता है उनको तो ये किताब पहुंचानी चाहिए और नए आउटलुक के लिए वो जरूर उनको प्रोत्साहित करेगी। मैं चंद्रशेखर जी और रूपा जी को इस विजनरी डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये किताब ऐसे समय आई है जब टेक्नोलॉजी को डिमोनाइज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। डर का एक माहौल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है और विशेष तौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। इस किताब में सरकार के उस विजन को और मजबूत किया है जिसके मुताबिक टेक्नोलॉजी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। टेक्नोलॉजी एक ब्रिज है, डिवाइडर नहीं है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट फोर्स मल्टीप्लायर है, ये थ्रेट नहीं है। टेक्नोलॉजी एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स के बीच ब्रिज बनाती है। टेक्नोलॉजी डिमांड और डिलीवरी के बीच एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रिज है। टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का भी ब्रिज है। टेक्नोलॉजी सबके साथ सबका विकास, ये जो सपना है उसको साकार करना एक मजबूत माध्यम है। साथियों, यही भावना बीते 5 वर्ष के हमारे कार्यकाल में रही है और यही भविष्य के लिए हमारी अप्रोच है। इस किताब में बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे डेवलपमेंट के टूल के रूप में, एड के रूप में मदद करने वाली है। यही बात अपने अनुभवों के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। बीते 5 वर्षों में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से भारत में गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है, इसको आप भी महसूस कर पा रहे हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। साथियों, हमारे देश में एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना
सब्सिडी देने का काम दशकों से चल रहा है। ये कोई हमने आकर के शुरू किया ऐसा नहीं है, चल रहा है। लेकिन जब हमने उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया तो कई लोगों को लगा कि शायद ये भी वैसी ही योजना होगी, ये चलेगी, सरकारें बदलेगी, नेता बदलेगी, योजनाएं चलती रहेगी। लेकिन हमने उस ढर्रे को बदला, उस सोच को बदला, हमने अप्रोच भी बदला और इसमें हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। साथियों, हम पहले की तरह चलते तो क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते, कमेटी फिर एक टास्क फोर्स बनाती, टास्क फोर्स एक नया ज्वाइंट कमेटी बनाती, फिर नीचे वाला ऊपर को रिपोर्ट देता, ऊपर वाला नीचे को रिपोर्ट देता, फिर ऊपर वाला नीचे रिपोर्ट को चेक करने के लिए देता और कभी डेडलाइन को हम मीट नहीं कर पाते। लेकिन कमेटी के बजाय हमने टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच पर भरोसा दिया। डेटा इंटेलिजेंस की मदद से पहले हमने 17,000 मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को लोकेट किया और फिर 10,000 नए सेंटर्स बहुत कम समय में हमने तैयार किए। और मैं उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करता हूं। लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको वहां डेंसिटी कितनी है, उस सारी चीजों को उसके साथ जोड़ते हैं। और इसके लिए हमने देश के हर गांव को एक डिजिटल मैप किया। इस डेटा को दूसरे डेटा पॉइंट जैसे सेल रिपोर्ट, एलपीजी पेनिट्रेशन, पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी सबको उसको एनालाइज टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास किया। लाखों गांवों से करीब करीब 64 लाख डाइवर्स डेटा पॉइंट्स के एनालिसिस के आधार पर तय किया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां कहां होने चाहिए। लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं हुआ। एक और बड़ी समस्या थी जिसका समाधान टेक्नोलॉजी ने दिया। डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के दौरान पता चला कि बहुत सी महिलाओं की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि और सिंपल सा कारण था कि इनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ तो तुरंत वरना पता चलता, कोई भी शायद पार्लियामेंट में कोई सवाल पूछता तो फिर बात उठती, अच्छा यहाँ वहां मिला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा तुरंत पता है तो प्रॉब्लम क्या है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने बैंकों की मदद से जनधन के बिल्कुल सार्वजनिक बड़े बड़े कैंप लगाए और ऐसी महिलाओं को उस वहां ले आया गया जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, बैंक अकाउंट खोले गए और जिसके द्वारा उनको एलपीजी सब्सिडी की व्यवस्था की गई। और परिणाम ये हुआ कि हमने 3 साल में 8 करोड़ परिवारों तक नए कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा था उसको हमने डेडलाइन से काफी पहले ही पूरा कर दिया। साथियों, ये तो बात हुई टेक्नोलॉजी के एक्सेस बढ़ाने की। अब मैं एक्सेस से बिहेवियरल चेंज लाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है, इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। देश में हेल्थ केयर की स्थिति पर आपकी किताब में रोशनी डाली गई है। काफी उदाहरण आपने हेल्थ केयर सेक्टर में जो गांव के लोग करते हैं उसका आपने वर्णन किया है। खास तौर पर इलाज ना कराने का मेंटल ब्लॉक जो हमारे देश में गरीबी के कारण रहा है, पैसे के अभाव के कारण रहा है। हर माँ बाप सोचता है बेटे को कर्ज में क्यों डालूं, ये बोझ बेटों को क्या डालूं, मैं बीमारी झेल लूंगा, कहाँ जिंदा रहना है। ये हमारे यहाँ बुजुर्गों की साइकोलॉजी है। बच्चों की चिंता ज्यादा होती है, खुद की नहीं होती है, और इसलिए वो बीमारी का उपचार भी नहीं करते थे। आयुष्मान भारत योजना इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। पहले जो गरीब इस चिंता में इलाज करने से कतरा था कि उसका सब कुछ बिक जाएगा, गिरवी रखना पड़ेगा, आज वो हिम्मत के साथ अस्पताल जाने लगा है क्योंकि उसको मालूम है कहीं से पेमेंट की व्यवस्था होने वाली। वो गरीब जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे पर दस्तक देने से भी हिचकता था, उसने आज ये एक्सेस मिला है। आज स्थिति ये है कि गरीबों में बिहेवियरल चेंज भी आया है, मेडिकल सेवाओं की डिमांड भी बढ़ी है, गरीबों का इलाज भी हो रहा है और अस्पतालों को सरकार से पैसा भी पहुंच रहा है। और ये भी अगर संभव हो रहा है तो उसका कारण भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग है। साथियों, इसी टेक्नोलॉजी से
आयुष्मान भारत को हेल्थ केयर के कंप्लीट पैकेज के तौर पर विकसित कर रहे हैं। पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस होता ही नहीं था। प्राइमरी हेल्थ केयर सिर्फ सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, वहीं पर टर्शरी हेल्थ केयर की जो सारी व्यवस्थाएं थी वहां तक सीमित थी। अब इसके लिए पूरे देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं और उनकी टर्सरी हेल्थ केयर के बेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बहुत ही कम समय में अब तक 21,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर तैयार भी हो चुके हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम समय में इन सेंटर्स पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कैंसर केस डायग्नोज हो चुके हैं, जो पहले शायद कभी कोई सोच सकता था कि हो सकता है हिंदुस्तान के दूर सुदूर गांवों में। पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में यह संभव बिल्कुल नहीं था। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही ये केस आगे रेफर किया जाता है, बड़ी हॉस्पिटल में भेजा जाता है और टर्सरी हेल्थ केयर नेटवर्क में वहां के डेटा के आधार पर सीधा और तेज इलाज संभव होने की शुरुआत हुई है। साथियों, टेक्नोलॉजी जब ब्रिज बनती है तो हमें ट्रांसपेरेंसी और टारगेटेड डिलीवरी का भी समाधान मिलता है। भारत में बिचौलियों और दलालों का क्या रोल था, इससे आप भली भांति परिचित हैं। गवर्नमेंट्स रन द कंट्री, मिडलमैन रन द गवर्नेंस। और इसको हमने एक रूल मान लिया था, यानी जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा बना लिया था। और इसलिए होता था क्या कि पीपल और प्रोसेस के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, खाई थी। बर्थ से लेकर डेथ तक सर्टिफिकेशन की एक लंबी व्यवस्था थी जिसमें सामान्य मानवी पिसता रहता था। आज जन्म से लेकर जीवन प्रमाण तक ऐसी सैकड़ों सरकारी सेवाएं आज ऑनलाइन अवेलेबल है और 2.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर देश में ये सेवाएं गांव में दे रहे हैं। आप सेल्फ सर्टिफिकेशन देश में नॉर्म बन रहा है। अब हम सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन और फेसलेस टेस्ट असेसमेंट जैसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलता है, इसका एक और उदाहरण आप देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, हमारी पोस्ट ऑफिस सेवा पर मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते प्रसार की वजह से एक खतरा मंडरा था कि ये पोस्ट का इतना बड़ा नेटवर्क क्या होगा, इसका इतने सारे लोग, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, उनके रोजगार पे संकट था। और इतने सालों से एस्टैब्लिश इतना बड़ा व्यवस्था चरमरा जाएगी, हमने उसको गंभीरता से सोचा और टेक्नोलॉजी की मदद ली। और टेक्नोलॉजी का कारण है कि आज वो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस की डिजिटल ट्रांजैक्शन की होम डिलीवरी के सेंटर बन रहे हैं जी। हमारा डाकिया बैंक बाबू बन रहा है जी, यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैं मानता हूं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये जो बैंकिंग व्यवस्था है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है और जिस पर हम बल दे रहे हैं। ये दिल्ली के लुटियन सर्कल में नजर नहीं आएगा, ये कुछ कहीं और की दुनिया है और उसको वहां तक पहुंचना भी शायद 1-2 पीढ़ी यहां के लोगों को तो निकल जाएगी। और इसी तरह गांव-गांव में ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी देने वाला कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क 12 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार दे रहा है और ये गांव के नौजवान डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं जी, यानी हमारे टैलेंट को हम कम ना आके। साथियों, एंटरप्राइज स्पिरिट को, एमएसएमई को मजबूत करने और उनके जॉब क्रिएशन के अहम सेंटर बनाने के लिए जो भी सुझाव किताब में दिए गए हैं उससे भी मैं मोटे तौर पर सहमत हूं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। ये कोई बड़ी थियरी और बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें नहीं है, सामान्य जीवन के अनुभवों से बनी हुई किताब है। यहां आने वाले साइलोस को दूर करने के लिए भी
हम टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, इसके बारे में अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। ये सरकार की डिमांड और एमएसएमई के सप्लाई इकोसिस्टम के बीच ब्रिज बना हुआ है। इस सिस्टम की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल इसके माध्यम से करीब 50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी का टारगेट भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट ने रखा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है इसमें और इतनी कम खर्चे में यह काम चल रहा है। साथियों, इसी तरह स्टार्टअप इंडिया लोकल डिमांड और सप्लाई को तो मेक इन इंडिया, लोकल सप्लाई और ग्लोबल डिमांड को ब्रिज कर रहा है। आपने इस किताब में डिमांड और सप्लाई समस्याओं पर बहुत बारीकी से समझाया है। स्टार्टअप इंडिया भी इन्हीं समस्याओं को डील कर रहा है। भारत के जो चैलेंजेस है उनको सामने रखते हुए आइडियाज को इंक्यूबेट कर इंडस्ट्री में बदलने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। आइडियाज होते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम मदद नहीं करती, इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है तो उसको एन स्केलेबल वे में मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं मिल जाती है। इन सारी समस्याओं का समाधान, और यही कारण है कि आज अधिक स्टार्टअप, और ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, टियर 2 और टियर 3 सिटी में उसकी बड़ी जाल तैयार हो रही है। यानी टियर 2, टियर 3 सिटी जिसकी तरफ कभी नजर नहीं जाती थी, वो आज स्टार्टअप के लिए नए नौजवान आगे आ रहे हैं और नया इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। और इन सभी बातों के बीच ये भी सही है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी समाधान नहीं होती है। ह्यूमन इंटेंशन और राइट इंटेंशन अब बहुत जरूरी होता है, और यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होती है। डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा क्या है। हकीकत यह है कि डिबेट ये होनी चाहिए, रोबोट इंसान से स्मार्ट कब तक होगा, ये चैलेंज होनी चाहिए। बल्कि डिबेट ये होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच हम ब्रिज कैसे बनाएं। संघर्ष नहीं, एक दूसरे को विनाश करने के लिए नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। हम ब्रिज बनाने के रास्ते कैसे ढूंढें और अपनी स्किल्स को नई डिमांड के अनुसार अपग्रेड कैसे करें। लेट AI be just another aid which is a little more sophisticated। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अन्य लोगों को किताब पढ़ने के लिए भी मुझे समय देना है। एक बार फिर इस बेहतरीन किताब के लिए, और जब एक क्लास है जो डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी इंटेलिजेंस परेशान है, उनको शायद एक नया खाना पानी मिल जाएगा इससे। मैं फिर एक बार, रतन जी आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर जी और रूपा जी को बधाई देता हूं इस योगदान के लिए, और आप सबका स्वागत करते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री को पुस्तक का विमोचन करने के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री रतन टाटा और सभी सम्मानित अतिथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस पुस्तक के विचार व्यवहारिक और उपयोगी लगेगी। थैंक यू सो मच।